Welcome to my YouTube channel Suren Sir Knowledge of Physics. Dear student, today I would like to say something very important topic, Kirchhoff's second law, which is related to standard 12 physics subject. Chapter number 3, current electricity. So this question is very important in board exam, for board exam point of view. So today I will teach you what is Kirchhoff's second law. In previous video I taught you what is this Kirchhoff's first law. So now I want to discuss what is the Kirchhoff's second law. See here, I have written on the board Kirchhoff's law, second law we can say, in other name also loop laws also we can say, and Kirchhoff voltage law in other name is Kirchhoff voltage law also we can, any values will come, suppose that Kirchhoff's second law या loop law or Kirchhoff voltage law, so we will write to the same definitions. So what is Kirchhoff's law? What given by the Kirchhoff's given that it states that, what states that the algebraic sum of the all voltage means this will be potential difference of the across the elements are the source of the EMF of the sources also, both values will be algebraic sum is given that. Here given that it states that the algebraic sum of the voltage, that is what we can say potential difference across the all elements and EMF of the all sources of any closed electrical circuit is zero. कहने का ये मतलब है कि पोटेंशियल डिफरेंस हमें निकालना है ऑल एलिमेंट्स के लिए, और उसके जो EMF ऑफ द सोर्स है उन दोनों का सम कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए. क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए. बेसिस ऑफ दिस वी कैन राइट सिग्मा डेल्टा बी इक्वल टू जीरो, जो इसकी डिफिनेशंस को आइडेंटिफाई करता है. सिग्मा डेल्टा बी, दिस विल बी पोटेंशियल डिफरेंस across to the element and the EMF source, both addition should be zero. So this is the second law of Kirchhoff's, we can say कि this is the Kirchhoff's second law, loop law or Kirchhoff's voltage law. Okay, so some significance is given that I want to explain the by circuit diagram through I want to explain the what is four significance of the Kirchhoff's second law. Here I have mentioned sign conventions which may be used while applying the Kirchhoff's second law. तो Kirchhoff's second law में जो sign conventions है वो किस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस और सोर्स ऑफ ईएमएफ के फॉर्म में लिखा जाता है, डेल्टा बी की वैल्यू कैसे हम लिखते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. तो बाय फर्स्ट पॉइंट थ्रो आई वांट टू एक्सप्लेन फर्स्ट देयर आर 4 पॉइंट्स ऑफ द साइन कन्वेंशंस ऑफ Kirchhoff's law. तो फर्स्ट इज गिवन दैट फर्स्ट सर्किट डायग्राम थ्रू वी वांट टू एक्सप्लेन you कि what is first significance in the given circuit. Given circuit is this. In the given circuits, the resistor is troubled या resistor of the resistance are is troubled toward the direction of किधर? Current directions. Then potential difference across to the resistor will be always we can taken as a negative sign. In that is, suppose that you can there see the circuit diagram. There are two terminal, means one current and other is the resistance. Suppose that this is the A terminal, this is the B terminal. So direction of the path we can say that left to right side, and then current direction also same, means direction of the current and the path of the direction means resistance directions both are same direction traveling. So what is total difference? Potential difference, what we can write that point of view resistor will be negative sign. So we can write Ohms have given that. What is formula Ohms? Ohms have given that B equal to IR. You have studied before. B equal to IR. Suppose that here current is I and the resistors are R. So potential difference what we can write? So by Ohm's law we can write delta V equal to IR. So basis of this directions of the current and resistance direction या direction of the path both are same. तो potential difference across to the current or resistors will be negative. तो R will be negative. तो delta V equal to what we can write? Minus R, minus IR. This is the first law, first sign conventions of the Kirchhoff's law. क्या समझ में आया? यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि बाय सर्किट डायग्राम के द्वारा आप देख सकते हो कि अगर
हमारा पाथ का डायरेक्शन या रजिस्टर जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जिस डायरेक्शन से ए से बी हम मूव कर रहे हैं, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द पाथ. This way we can write. Second point is same way. In the given circuit, if resistors of the resistance are travel in the opposite direction of the current, then potential difference across to the resistor we can taken as a positive. So that is what we can say here. Current is I and the resistors are R. So potential difference delta V equal to R will be positive. So what we can write delta IR. What we can write delta V equal to IR because R is positive. We will consider if path directions of the resistor is opposite direction of current. आप देख सकते हो यहाँ पे this is the direction of the trouble, मतलब पाथ का डायरेक्शन रजिस्टर का डायरेक्शन है एंड करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में है. इसके बेसिस पे क्या है कि आर की वैल्यू नेगेटिव है, लेकिन आपको लिखना भी पड़ेगा कि कैसे लिखना है. तो वहां पे हम क्या लिखेंगे, डेल्टा बी इक्वल टू आई आर. तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, एक सर्किट बनानी पड़ेगी जैसे हमने बनाई है, और आपको लिखना पड़ेगा इन द गिवन सर्किट इफ रजिस्टर्स ट्रेवल इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द करंट देन पोटेंशियल डिफरेंस. एक दो बार रिपीट कर लेना, एक बार फिर से सुन लेना फिर से, तो आपको क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो हम क्या बताएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू द रजिस्टर कैन बी टेकन एज ए पॉजिटिव. तो आर पॉजिटिव होगा, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी इक्वल टू आई आर. इट्स क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया. अब हमारे पास जो थर्ड और फोर पॉइंट का साइन कन्वेंशन बताएंगे वो सोर्स ऑफ ईएमएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएंगे. तो उसकी भी हमने सर्किट बना दी है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसका फॉर्मूला क्या हो सकता है. लिसन सेम टू सेम है, बस उसके टर्मिनल को हमें ध्यान देना है. इन गिवन सर्किट जो आपको पास सर्किट दी गई, इन द गिवन सर्किट आपको लिखना भी ऐसे ही है. इन द गिवन सर्किट क्या दिया गया है कि द सोर्स ऑफ ईएमएफ ट्रेवल फ्रॉम द माइनस साइन टू प्लस साइन, मतलब नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल. देन पोटेंशियल डिफरेंस of the source of EMF always we can take positive sign. क्या लेते हैं, पॉजिटिव साइन. तो डेल्टा बी की वैल्यू क्या होगी, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, यहां पे प्लस ई होगा. क्या होगा, प्लस ई. इतना क्लियर हुआ, इट्स क्लियर, हैव यू अंडरस्टैंड? ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं कि डायरेक्शन, इसका करंट का डायरेक्शन ये है, और जो बैटरी का टर्मिनल अगर ये ए है, ये बी टर्मिनल है, यहां पे भी ए बी ले सकते हैं. ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हो कि ए से बी का डायरेक्शन है पाथ का, और करंट का अपोजिट डायरेक्शन है, तो यहां पे प्लस आर था. उसी तरह से आप देख सकते हो कि पाथ का डायरेक्शन ये है. टर्मिनल ए से बी की बात हो रही है, तो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल में अगर वोल्टेज होती है पाथ के डायरेक्शन में, इस तरह से नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल में मतलब करंट फ्लो होती है, पाथ का डायरेक्शन होता है, तो डेल्टा बी क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस. सोर्स ऑफ क्या होता है, कैपिटल ई होता है. अब चौथा पॉइंट जस्ट उसका अपोजिट है कि इन द गिवन सर्किट, हमें वो लिखना है, सर्किट तो बनाना ही पड़ेगा तभी तो आप समझा पाओगे. तो आपको वो सर्किट तो बनाना ही है, तो आपको क्या बताना पड़ेगा, इन द गिवन सर्किट. सर्किट हमने बना दिया है जिससे समय ज्यादा ना लगे. मान लेते हैं ये ए टर्मिनल है, ये बी टर्मिनल है. इन द गिवन सर्किट इफ, ठीक है, ईएमएफ ऑफ द सोर्स ट्रेवल फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, देन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू द सोर्स ऑफ ईएमएफ कैन बी टेकन या मे बी टेकन एज ए नेगेटिव साइन. कहने का मतलब यहाँ पे ईएमएफ की वैल्यू नेगेटिव होगी. तो क्या आप देख सकते हो कि करंट का मतलब डायरेक्शन ऑफ पाथ ये है, यहां से पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल में ईएमएफ मूव कर रहा है, और इसका जो डिफरेंस होगा माइनस ई होगा. अगर ये क्लियर हो गया तो नेटवर्क के कोई भी क्वेश्चन होंगे उसमें आप किरचॉफ्स लॉ का यूज करोगे तो सही होगा, आपके आंसर आ जाएंगे. अगर ये चारों कन्वेंशन आपका क्लियर नहीं है तो आप न्यूमेरिकल करने में प्रॉब्लम करोगे, कहीं ना कहीं गलतियां करोगे और आपको क्वेश्चन नहीं आएगा. तो प्लीज इस वीडियो को एक बार फिर से रिप्ले करके देख लेना, 2 बार देख लेना. ठीक है, जैसे एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो हमारे 4 पॉइंट हैं, तो 4 पॉइंट में सर्किट बना के उसके स्टेटमेंट लिखोगे तो बेटर, मतलब अच्छे मार्क मिलेंगे आपको, आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे. तो अब दोबारा रिपीट करने की जरूरत है नहीं है? नो सर. तो फिर आगे हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंस पढ़ेंगे
कि इसमें किरचॉफ के जो सेकंड लॉ है उसके डिफरेंस क्या है, फर्स्ट और सेकंड लॉ में डिफरेंस क्या है वो भी बताते हैं, क्योंकि वो 2 मार्क में क्वेश्चन आता है। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आपको मिलने वाला है, मतलब नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, आप देख सकते हैं।